نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم او كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم سامعین، اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو بھیجا اور سب سے آخر میں محمد عربی خاتم النبیین، خاتم الاولین، سید الاولین والآخرین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا۔ انسانوں کی رہنمائی کے لیے، ان کی تربیت کرنے کے لیے نبیوں کو بھیجا جاتا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بھی دنیا میں آئے تو آپ کا سب سے بڑا مقصد تھا تزکیہ اور لوگوں کی تربیت کرنا، ظاہری طور پر بھی تربیت کرنا اور باطنی طور پر بھی، روحانی طور پر بھی لوگوں کی تربیت کرنا، ان کا تزکیہ کرنا، ان کی تطہیر کرنا، ان کی صفائی کرنا۔ پھر ان دونوں میں بھی سب سے بڑا مقصد تھا، ان دونوں میں جو بڑا مقصد تھا وہ تھا باطنی صفائی۔ باطنی صفائی کا مطلب ہے لوگوں کو حسد سے، کینے سے، نفرت سے، غصے سے، بغض سے، دشمنی سے لوگوں کو پاک صاف کرنا۔ لوگوں کو جو غلط لتیں لگی ہوئی ہوتی ہے، گناہ کی جو لت لگی ہوئی ہوتی ہے، لوگوں کو ان سے چھڑانا، آزاد کرانا۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں ظاہری طور پر رہنے کا جو سلیقہ ہے، طریقہ ہے، صفائی ستھرائی کا جو طریقہ ہے، وہ بھی لوگوں کو سکھانے کے لیے آئے تھے۔ اگرچہ اصل مقصد باطنی صفائی ہے، لیکن ظاہری طور پر صفائی ستھرائی سکھانا لوگوں کو، یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا اور بعثت کا بہت بڑا مقصد ہے۔ آخرت کی کامیابی کا زیادہ تر تعلق باطنی صفائی سے ہے۔ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ۔ ہم نے نبی کو اس لیے بھیجا تاکہ لوگوں کی باطنی صفائی کر سکے، کیونکہ آخرت کی کامیابی کا مدار اسی پر ہے۔ اور ایک جگہ اللہ نے 7 قسمیں کھائی اور 7 قسمیں کھا کر فرمایا قد افلح من زکاہا۔ آخرت میں کامیاب وہی ہوگا جس کا باطن، جس کا دل، جس کا نفس گناہوں سے اور سیاہی سے پاک صاف ہوگا۔ اور حدیث شریف میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم۔ اللہ تعالیٰ نہ تمہاری صورتوں کو، شکلوں کو دیکھتا ہے، نہ تمہارے مال و دولت کو دیکھتا ہے، لیکن تمہارا دل کتنا صاف ہے، تمہارے کیسے اعمال ہے، اللہ تعالیٰ یہ سب چیزیں دیکھتا ہے۔ تو انسان کی باطنی صفائی یہ نبیوں کا سب سے بڑا مقصد ہوتا ہے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری طور پر رہنے کا طریقہ بھی سکھانے کے لیے آئے تھے، صفائی ستھرائی کا مزاج بنانے کے لیے آئے تھے۔ چنانچہ آپ نے وہ کر دکھایا۔ اور جتنا اہتمام صفائی ستھرائی کا مذہب اسلام میں ہے، اسلام نے لوگوں کو صفائی ستھرائی کا درس دیا ہے، کسی دوسرے مذہب میں وہ اہمیت صفائی ستھرائی کی ہمیں نہیں ملتی۔ دن میں 5 وقت نماز پڑھی جاتی ہے، ہر نماز کے لیے وضو کرو، ہاتھ دھو، چہرے کو دھو، پاؤں دھو، صفائی کا اور منہ دھونے کا حکم دیا، غسل کرنے کا حکم دیا۔ مسجد میں اگر جا رہے ہیں تو
सफाई का हुक्म दिया, वुजू करो, गुसल करो। कुरान करीम की तिलावत कर रहे हैं तो वुजू या गुसल करो। तस्बीह पढ़ रहे हैं, किताब का मुताला कर रहे हैं, हदीस शरीफ पढ़ रहे हैं तो वुजू और गुसल करो। इतनी सफाई का एहतिमाम किसी मजहब में नहीं मिलता, बल्कि दुनिया में अब भी बाज मजहब तो ऐसे हैं कि जिसमें गंदगी को ही ज्यादा पसंद किया जाता है। वो लोग ये समझते हैं कि जितना हम गंदे होंगे, जितना हमारे बदन पर मेल कुचेल जमा रहेगा, जितने हमारे बड़े बड़े सर के बाल रहेंगे, तो देवी देवता और हमारे जो खुदा हैं वो हमसे ज्यादा खुश होंगे गंदगी से। कैसा मजहब है भाई कि जितना ज्यादा गंदे होंगे इतने ही ज्यादा देवता खुश होंगे। बहुत सारी वीडियोस आती है, लोग मिलते भी हैं, नाखून बड़े कर रखे हैं, 10-10 फुट के नाखून हैं, 1-1 मीटर के नाखून हैं, बाल हैं, पता चला कि 10 साल से 30 साल से बाल नहीं काटे, मूछें बड़ी बड़ी है, मूछों में फिर उनकी चोटी भी बनाई हुई है। लेकिन इस गंदगी को इस्लाम पसंद नहीं करता। कहता है कि नाखून अगर 1 हफ्ता हो जाए, 1 हफ्ते से ज्यादा नाखून न रखो, जरूर 1 हफ्ते में उसको काट लिया जाए। मूछें भी ज्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए, सर के बाल भी ज्यादा बड़े नहीं होने चाहिए, इनको साफ करते रहना चाहिए, इनमें तेल लगाते रहना चाहिए। सफाई सुथराई का जबरदस्त निजाम और सिस्टम इस्लाम ने रखा है। बल्कि सिख मजहब को देख लो, उनके यहाँ तो ये हुक्म है कि पूरे बदन के कहीं भी बाल नहीं काटे जाएंगे। अब सिख लोग जो होते हैं उनको देखो कि वो दाढ़ी भी नहीं काटते। अब वो चूंकि उनकी दाढ़ी ज्यादा बड़ी हो जाती है तो वो उसको कपड़े से दबाते हैं, सर के बाल बड़े हो जाते हैं तो पगड़ी बांध लेते हैं ताकि सर के बाल इधर उधर न बिखर जाएं। लेकिन ये बोझ इस्लाम पसंद नहीं करता। इस्लाम तो चाहता है कि इंसान एकदम साफ सुथरा फिट फाट सा रहे, बिल्कुल एकदम फिट फाट, जो देखने में भी खूबसूरत लगे और उसके दिल को भी सुकून हो। एक सलीमुल फितरत आदमी खुद महसूस कर सकता है कि अगर 2 दिन दांत साफ ना करे, बालों में कंघा ना करे तो कितनी परेशानी हो जाती है। 2 दिन अगर सर में तेल ना लगाया जाए, नाखूनों में मेल हो जाए तो आदमी परेशान हो जाता है। ये इस्लाम की खुसूसियत है, इस्लाम की खूबसूरती है, इस्लाम का हुस्न है कि वो सफाई सुथराई का इतना एहतिमाम करने का हुक्म देता है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बिल्कुल साफ सुथरे फिट फाट रहा करते थे। ऐसा तो होता था कि हुजूर का जो लिबास है वो कम कीमत का है या उसमें पेवंद लगे हुए हैं, उसमें जोड़ लगा हुआ है, लेकिन हुजूर का लिबास मेला और कुचेला नहीं रहता था, बिल्कुल साफ सुथरा रहता था। गंदगी से दूर भागते थे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सहाबाई किराम को भी हुक्म दिया करते थे कि जब भी जुमा पढ़ने के लिए आए, जब भी महफिल में आए तो गुस्ल करके आना चाहिए। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे आला क्वालिटी की खुशबू पसंद थी, सबसे आला क्वालिटी की खुशबू। घटिया खुशबू कभी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्तेमाल नहीं करते थे, बहुत आला किस्म की। अच्छा, हमारे यहाँ खुशबू कई तरह की होती है, बाज तो बहुत अच्छी होती है, बाज बहुत घटिया किस्म की होती है, बहुत तेज होती है। याद रखो कि खुशबू और इतर और परफ्यूम जितना घटिया होगा इतना ही तेज भी होगा, उससे नमाजियों को तकलीफ होती है, परेशानी होती है। बल्कि मैं आपको यहां एक मसला बताता चलूं, जिस तरह लहसुन खाकर, कच्चा लहसुन खाकर, कच्चा प्याज खाकर मस्जिद में आना मकरूह है, इसी तरह घटिया किस्म का इतर और खुशबू लगाकर नमाज पढ़ना या मस्जिद में आना भी मकरूह है। क्योंकि जिस तरह कच्चा प्याज और लहसुन खाने से लोगों को तकलीफ होती है, उसके मुंह से बदबू आती है, इसी तरह घटिया किस्म का इतर लगाने से, घटिया किस्म की खुशबू लगाने से नमाजियों को तकलीफ होती है। तो हर ऐसा काम, हर ऐसी खुशबू और बदबू जिससे नमाजियों को तकलीफ हो, लगाकर आना मुनासिब नहीं है।
अच्छी खुशबू लगाकर आना चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हल्की फुल्की खुशबू नहीं लगाते थे, आला किस्म की खुशबू लगाते थे। और कपड़ा भी जो होता था बिल्कुल साफ सुथरा, अगरचे हल्का फुल्का है, कम कीमत का है। अच्छा, कम कीमत का भी हमेशा नहीं होता था, आप आला किस्म का भी पहनते थे जो बहुत ज्यादा कीमती। आपको अगर कभी मालूम हो जाता कि बाजार में एक नया कपड़ा आया है, कीमती है, खूबसूरत है, अच्छा है, तो आप उसको खरीद लिया करते थे। कभी चादर भी ओढ़ी है आपने, कभी हल्के किस्म का भी पहना है और आला किस्म का भी पहना है। आपको मालूम हुआ कि बाजार में शलवार आई है, पाजामा बिकने के लिए आया है, तो हुजूर को एहसास हुआ कि इसमें सतर ज्यादा छुपता है, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शलवार खरीद कर रख ली। अगरचे पहनने की नौबत नहीं आई, लेकिन पहनने की नीयत से उसको खरीदा तो था। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा फिटफाट रहते, साफ सुथरा रहते, हल्के किस्म का भी पहनते थे लिबास और आला किस्म का भी, घटिया गंदा कभी नहीं रखते थे। अच्छा, हमारे यहाँ के जो नात खां हैं, उन्होंने एक लफ्ज अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बहुत बार बोला है, कमली वाला, काला कमली वाला। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान के खिलाफ है। बिल्कुल बोल सकते हैं, इसका लफ्ज का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बहुत ही ज्यादा। ये सुनकर तो लोगों के जहन में ये तसव्वुर जाता है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कि नाउज़ बिल्लाह आप एक तरह के मलंग की तरह रहा करते थे, कि जिस तरह आजकल के बावले और मलंग रहते हैं ना, कि एक लुंगी बांध ली और एक चादर सी ओढ़ ली, एक कंबल सा ओढ़ लिया और किसी सड़क के किनारे बैठे हैं, फुटपाथ पर बैठे हुए हैं, किसी गंदी जगह पर बैठे हुए रहते हैं ना, जैसे ये मलंग और चरसी और ऐसे ही बेवकूफ से। तो नाउज़ बिल्लाह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी ऐसे रहते, ऐसा नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यकीनन कमली ओढ़ी है, कंबल ओढ़ा है, काला कंबल ओढ़ा है, लेकिन कभी कभार जिस तरह हम भी ओढ़ लेते हैं, काली चादर ओढ़ लेते हैं, काला कंबल भी ओढ़ लेते हैं, लेकिन ये मतलब थोड़ी कि हम 24 घंटे काली कंबली में ही रहते हैं। तो नात खाओं ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का काला कमली वाला या कमली वाला जो तसव्वुर लोगों के जहन में बिठाया है, ये गलत है। हुजूर तो एकदम साफ शफाफ रहा करते थे, फिट फाट रहा करते थे, साफ सुथरा लिबास है, आला किस्म की खुशबू है, इतर लगाया हुआ है। इसीलिए चूंकि नात खाओं ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गलत तसव्वुर और गलत इमेज लोगों के दिमाग में बिठाई हुई है, तो बहुत सारी जगह पर देख लो, खास तौर से वो इलाके जहां पर दीनदारी नहीं है, जहां पर मसाजिद और मदारिस कम है, जहां कुरान और हदीस की तालीम कम है, जहां सीरत की तालीम कम है, लोग ऐसे मलंग को और बेवकूफ को बुजुर्ग मान लेते हैं जो खुद अपने काम नहीं कर सकता। बहुत सारी वीडियोस आती हैं, नंगा है आदमी, बूढ़ा नंगा बैठा हुआ है और औरतें उसकी चारों तरफ इर्द गिर्द उसकी अकीदत में झूम रही है, उसके पांव को छू रही है, उसका झूठा खाना खा रही है। एक तो वो नामहरम के सामने आना तो वैसे ही नाजायज है, फिर ऊपर से नंगा भी है, और तीसरी बात यह है कि अकीदत में आए हुए हैं, उसके पास बैठे हुए हैं। किसी भी बेवकूफ को पकड़कर बैठ जाते हैं, उसको बिठा लेते हैं, लो जी हमारा पीर साहब हो गया और बड़ा अल्लाह वाला है, बुजुर्ग है, अब हमारी जन्नत जहन्नम के फैसले तो यही करेगा। न सहाबाए किराम ऐसे रहा करते। भला जो नंगा होगा वो अकल से ही तो कोरा होगा, वरना सही अकल वाला तो अच्छा लिबास पहनता है, कपड़े पहनता है और एक अच्छा इंसान बनकर रहता है। अल्लाह वाला वही होता है जो अल्लाह की सीरत, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के मुताबिक खुद की जिंदगी को ढालता है। सहाबाए किराम का कोई वाकया दिखाए या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का कोई वाकया बताए, कोई टाइम बताए कि जो आप इस तरह मलंग की तरह रहते हो या नाउज़ बिल्लाह बगैर लिबास के रहते हो,
पूरी जिंदगी में कोई एक वाकया भी नहीं मिलेगा। तो लोगों को समझना चाहिए, गुमराही से निकलना चाहिए। आज तो वैसे भी इल्म का दौर है, जो बातें पहले जमाने में लोगों के सामने नहीं आती थी अब तो वो खुलकर आ रही है। इतनी जहालत में डूबने की जरूरत क्या है कि एक बेवकूफ आदमी को जो, अच्छा बाज वीडियो तो ऐसी भी देखी है, बाज लोगों के बारे में मालूम भी हुआ है कि उनको कलमा तक ही नहीं आता और वो पीर बना बैठा है। बस थोड़ा सा अपनी हालत जो है ना बदल ली उन्होंने। अब तो ये हालत है कि जिसकी हालत जितनी खस्ता होगी, जिसका जितना लिबास गंदा होगा, जो जितना ज्यादा गंदा और बेसुरा होगा, इतना ही वो अल्लाह वाला होगा। देखो किसी भी शख्स की दीनदारी को समझने के लिए कुरान और हदीस हमारे पास मौजूद है, सहाबाए किराम की सीरत मौजूद है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मौजूद है। वो एक साहिब पूछ रहे थे कि हमें कैसे पता चलेगा कौन सी बात सही है और कौन सी गलत है। एक आलिम एक वीडियो में एक बात कहता है, दूसरा आलिम और दूसरे मौलाना दूसरी बात कहते हैं। हमें पता ही नहीं चलता है कि कौन सी सही है कौन सी गलत है। वो इसको गुमराह कह रहा है, वो इसको गुमराह कह रहा है। तो मैंने उनको बतलाया कि आसान सा बिल्कुल इसका हल है, कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। ये मिंबर पर बैठने वाला जो तकरीर कर रहा है हमें सिखा रहा है, ये वीडियो में और मोबाइल में तकरीर करने वाला आलिम जो हमारे सामने बयान कर रहा है सही कह रहा है या गलत कह रहा है, इसके जांचने का बिल्कुल आसान तरीका है कि उसकी बात को कुरान और हदीस पढ़ ले जाओ। अगर वो हुजूर की सीरत पे मिलती है, सहाबा के यहाँ वो काम था, तो उसकी बात सही है। अगर कोई आलिम ऐसी बात बता रहा है जो ना हमें कुरान में मिलती है, ना हमें हुजूर की जिंदगी में मिलती है, ना सहाबे किराम की सीरत में मिलती है, तो वो बात गलत है, उसकी बात माननी ही नहीं चाहिए। बिल्कुल आसान सा और सिंपल सा तरीका है। तो बहरहाल मैं ये कह रहा था कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल्कुल साफ सुथरे रहते थे, और जब नमाज पढ़ने जाते तो और भी ज्यादा सफाई सुथराई का एहतिमाम करते थे। इसीलिए तो कुरान करीम में अल्लाह ताला ने फरमाया, खुजू ज़ीनतकुम इंद कुल्ली मस्जिद, कि जब तुम नमाज के लिए जाओ, मस्जिद में जाओ, तो अपना लिबास पहन लो, साफ सुथरे हो जाओ। खुजू ज़ीनतकुम, ये नहीं फरमाया अल्लाह ने खुजू लिबासकुम कि अपना लिबास पहन लो, कपड़े पहन लो, नहीं, जीनत फरमाया कि वैसे तो आदमी आम तौर से और आम हालत में भी साफ सुथरा ही रहे, लेकिन जब नमाज का वक्त आए, मस्जिद में जाने का वक्त आए, तो और ज्यादा सफाई सुथराई का एहतिमाम करना चाहिए। खुशबू लगाए और वुजू करे, अच्छी तरह कपड़े साफ सुथरे होने चाहिए, गंदे वाले कपड़े नहीं होने चाहिए। गंदे कपड़ों में तो नमाज पढ़ना भी मकरूह है, मस्जिद में जाना ही मकरूह है। वो लोग जो सुबह की फजर की नमाज में लोवर पहनकर आते हैं, उनकी नमाज भी मकरूह होती है। होता है ना ऐसा कि सुबह को नमाज के लिए उठे तो वही कपड़े पहनकर आए जो रात को पहनकर सोए थे। ऐसे कपड़ों में नमाज पढ़ना मकरूह है, लोवर में नमाज पढ़ना मकरूह है। बाद लोग ऐसे होते हैं मिस्त्री किस्म के लोग कि वो काम कर रहे हैं, दुकान पर बैठे हुए हैं, मजदूरी कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, गंदे कपड़े हो रहे हैं, नमाज का वक्त हुआ, अजान हुई, वही कपड़े पहनकर मस्जिद में चले गए, तो ऐसे कपड़ों में नमाज पढ़ना और मस्जिद में जाना ममनू है और मकरूह है। नमाज तो हो जाएगी लेकिन नमाज पढ़ना मकरूह है। भाई आप अल्लाह के दरबार में जा रहे हैं, सारे जहान के मालिक के दरबार में जा रहे हैं, तो आप ऐसा लिबास पहनकर जाएंगे? हर ऐसा लिबास पहनकर नमाज पढ़ना मकरूह है जो हम किसी महफिल में और शादी में पहनकर नहीं जा सकते। लोवर पहनकर आप शादियों में जाते हैं, शादी में आप लोवर पहनकर नहीं जा सकते, आपको शर्म आती है, लेकिन अल्लाह के दरबार में जब नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं आपको शर्म नहीं आती? आपका दम नहीं घुटता? आपका नफ्स, आपका दिल आपको नहीं झंझोड़ता कि आप अल्लाह के दरबार में जा रहे हैं, क्या पहनकर जा रहे हैं?
बल्कि जो मस्जिदों में टोपियां रखी रहती है प्लास्टिक की या पत्तों की रखी रहती है, उनमें नमाज पढ़ना भी मकरूह है, क्योंकि वो गंदी रहती है, लोगों का हर आदमी उसको ओढ़ता है, लोगों के सरों पर तेल लगा रहता है, तेल की वजह से वो गंदी हो जाती है, काली हो जाती है। तो उनको पहनकर नमाज पढ़ना भी मकरूह है। अपनी टोपी होनी चाहिए, साफ सुथरी टोपी होनी चाहिए। आपने देखा होगा कि जब हमारे मुल्क हिंदुस्तान के वजीर आजम या जो सदर होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं, वो लोगों को अवार्ड देते हैं, तो उनकी जो राष्ट्रपति भवन होता है, राष्ट्रपति भवन में एक महफिल लगती है, प्रोग्राम होता है, उसमें बड़े बड़े नेता मौजूद होते हैं, तो उसमें राष्ट्रपिता जो होते हैं वो लोगों को अवार्ड देते हैं। आपने देखा होगा कि वहां आदमी अच्छे से अच्छा लिबास पहनकर बैठा रहता है, बिल्कुल साफ सुथरा फिट फाट बनकर बैठा रहता है। देखा है किसी को लोअर में बैठा हुआ या किसी गंदे और फटे पुराने कपड़ों में बैठा हुआ? नहीं, उसको पता है कि यह हमारे मुल्क का बादशाह है, हमारे मुल्क का हाकिम है, इसकी महफिल में, इसके प्रोग्राम में हम गंदा पहनकर नहीं जा सकते। बड़ी शर्म आती है भाई, लोग क्या कहेंगे, प्रधानमंत्री को कैसा लगेगा अगर हम लोअर पहनकर जाएंगे। भाई एक छोटे से मुल्क के बादशाह के सामने आप गंदे कपड़े पहनकर नहीं जा सकते, तो जो सारे जहानों का मालिक है, तुम्हारा बनाने वाला है, तुम्हें पैदा करने वाला है, तुम्हें खूबसूरती देने वाला है, तुम्हें नेमतें देने वाला है, उसके दरबार में जब तुम जाते हो तो गंदा कपड़ा पहन कर जाते हो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसीलिए जब नमाज पढ़ने जाते तो बिल्कुल फिटफाट होकर जाते थे, और कुरान करीम में इसीलिए तो फरमाया खुजू ज़ीनतकुम इंद कुल्ली मस्जिद, कि अच्छे से अच्छा लिबास पहनकर मस्जिद में नमाज पढ़कर जाओ, नमाज पढ़ने के लिए जाओ। लोग समझते हैं कि अच्छे कपड़े पहनना ये इस्लाम के खिलाफ है, साफ सुथरे कपड़े पहनना ये इस्लाम की तालीम के खिलाफ है, अच्छा खाना खाना, साफ सुथरा मकान बनाना, साफ सुथरा रहना ये इस्लाम के मिजाज के खिलाफ है। ऐसा नहीं है। अल्लाह ने कुरान करीम में फरमाया कुल मन हर्रम ज़ीनतल्लाहि अल्लती अखरज लिइबादी वत्तय्यिबाति मिनर रिज़्क़, खूबसूरत चीजें ही तो अल्लाह ने इंसानों के लिए पैदा की, अल्लाह ने हराम नहीं की है। वत्तय्यिबाति मिनर रिज़्क़, और पाकीज़ा, अच्छा, लजीज, जायकेदार जो खाने की चीजें हैं, पीने की चीजें हैं, वो भी अल्लाह ने हराम नहीं करार दी है, तुम्हारे लिए ही बनाई है। तुम अच्छा कपड़ा भी पहनो, अच्छा खाना भी खाओ। अच्छे से अच्छा खाना इस्लाम की, जो इस्लाम ने मना किया है वो फजूल खर्ची को, कि ज्यादा से लोग फजूल खर्ची करते हैं कि एक लिबास पहन लिया उसको दोबारा पहनते ही नहीं है। खास तौर से औरतों के अंदर ये मिजाज होता है कि एक शादी के अंदर जो लिबास पहना, जो कपड़ा पहना, उसको दोबारा नहीं पहनते। 100 जोड़े आदमी ने बना रखे हैं, कपड़े बना रखे हैं, इसको मना किया है। जरूरत से ज्यादा फजूल खर्ची कर रहे हैं, जरूरत से ज्यादा खर्चा कर रहे हैं दिखावे के लिए, शरीयत ने इसको मना किया है। वरना साफ सुथरे कपड़े पहनने को शरीयत मना नहीं करती बल्कि उसको पसंद करती है। मैंने बतलाया ना कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आला किस्म का, बहुत कीमती किस्म का लिबास भी पहनते थे। खास तौर से औरतों का यह मिजाज होता है कि वो बहुत ज्यादा दिखलावा करती है, बहुत ज्यादा फजूल खर्ची करती है, तो दिखलावे के लिए लिबास पहनना ये शरीयत मना करती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मन लबिसा सौब शोहरतिन फिद दुनिया अलबसहुल्लाहु सौब मज़ल्लतिन यौमल क़ियामा, जो शोहरत हासिल करने के लिए, दिखावे के लिए, दूसरे को नीचा दिखाने के लिए दुनिया में लिबास पहनेगा, अल्लाह ताला उसको क़यामत के दिन जिल्लत का लिबास पहनाएंगे। बेशक आप मेकअप भी कर सकते हैं, आप अच्छे से अच्छा लिबास भी पहन सकते हैं, आप अच्छे से अच्छा खाना भी खा सकते हैं,
لیکن شریعت فضول خرچی کو منع کرتی ہے، دکھاوے کو منع کرتی ہے۔ اور عورتوں کے لیے کچھ خاص تعلیمات بھی ہے جو اسلام نے دی ہے۔ شریعت نے کہا کہ عورتیں میک اپ کریں، عورتیں اچھا لباس پہنیں، عورتیں اچھا کھانا کھائیں، عورتیں اچھے سے اچھا دوپٹہ اوڑھیں، عورتیں اچھے سے اچھا برقع اوڑھیں، لیکن اس کی کچھ حدود ہے، کچھ شرائط ہے۔ قرآن کریم میں فرمایا پہلی شرط کے بارے میں وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، کہ عورت جتنا چاہے میک اپ کرے، شریعت کی حدود میں رہ کر اچھے سے اچھا قیمتی لباس پہنے، لیکن اپنے گھر میں رہے، ضرورت سے زیادہ لوگوں کو دکھاوا کرنے کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے بناؤ سنگار کر کے باہر نہیں نکلنا چاہیے، گھر میں رہنا چاہیے۔ ایک تو گھر سے باہر بغیر ضرورت کے نہ نکلے، اور اگر نکلے بھی ضرورت کی وجہ سے تو بناؤ سنگار کر کے نہ نکلے، سادگی کے ساتھ نکلے، ساتھ میں محرم بھی ہو، اور اگر محلے میں ہی جا رہی ہے تو محرم کا ہونا ضروری نہیں ہے، تو بغیر ضرورت کے گھر سے باہر نہ نکلے عورت، اور اگر نکلے تو بغیر بناؤ سنگار کے نکلے، بغیر میک اپ کے نکلے۔ یہ تو جاہلیت میں ہوا کرتا تھا کہ گھر میں عورت گندی رہا کرتی تھی، اور جب باہر نکلتی تھی تو بناؤ سنگار کر کے نکلتی تھی۔ آج کا بھی یہی دور ہے، آج کا بھی یہی عالمیہ ہے عورتوں کا، کہ گھر میں گندی رہتی ہے، میلی کچیلی رہتی ہے، لیکن جب بازار میں اور مارکیٹ میں خریدنے کے لیے جائے گی اور شاپنگ کرنے کے لیے جائے گی تو دنیا بھر کا میک اپ کرے گی۔ تو اللہ نے فرمایا وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، عورتوں کو بغیر میک اپ کے باہر جانا جائز ہے، میک اپ کر کے لوگوں کو دکھانے کے لیے نکلنا جائز نہیں ہے۔ یہاں میں ایک بات بتلاتا چلوں کہ جماعت میں جانا دعوت و تبلیغ کے لیے عورتوں کے لیے جائز نہیں ہے، کیونکہ اسلام نے اور شریعت نے جو دعوت و تبلیغ کا، لوگوں کو دین کا پیغام پہنچانے کی جو ذمہ داری دی ہے، وہ عورتوں کو نہیں بلکہ مردوں کو دی ہے۔ جب عورتوں پر اس کی ذمہ داری ہے ہی نہیں تو عورتوں کے لیے تبلیغ میں جانا بھی جائز نہیں ہے، کیونکہ شریعت نے قرآن میں کیا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، خاص طور سے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اپنے گھروں میں رہو، بغیر ضرورت کے نہ نکلو، ضرورت کے لیے نکلو۔ جب دعوت و تبلیغ عورت کی ذمہ داری نہیں ہے تو دعوت و تبلیغ کے لیے نکلنا یہ جائز بھی نہیں ہوگا۔ بھلا شریعت نے عورت کو مسجد میں جانے سے منع کر دیا؟ آپ تو سمجھتے ہیں کہ گھر میں نماز پڑھنے کا ثواب کم ہے مردوں کے لیے، اور مسجد میں نماز پڑھنا 70 گنا زیادہ ہو جاتا ہے، ثواب بڑھ جاتا ہے۔ شریعت نے کیا کہا عورتوں کو کہ آپ کے گھر کے برابر میں اگر مسجد ہے تو اس میں بھی جانا جائز نہیں ہے۔ اللہ نے اور شریعت نے عورت کو مسجد کے ثواب سے محروم رکھا۔ مسجد میں جانے کا جو ثواب مردوں کو مسجد میں جا کر مل رہا تھا، وہی ثواب عورتوں کے لیے گھر میں نماز پڑھنے پر دیا جا رہا ہے۔ جب گھر کے برابر میں مسجد میں جانا عورتوں کے لیے ممنوع ہو گیا تو دوسرے شہر میں، دوسرے علاقے میں دعوت و تبلیغ کے لیے جانا کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ اس لیے عورتوں کی تعلیم کا انتظام گھروں میں ہی ہوگا۔ ہمارے علماء نے ایسی کتابیں لکھی ہے کہ عورتیں مکمل طور پر گھر میں ہی دین کی جو تعلیمات ہے، قرآن و حدیث کی تعلیمات ہے، گھر میں رہ کر حاصل کر سکتی ہے۔ جائز نہیں ہے، عورتوں کو گھروں سے نکلنا جائز ہی نہیں ہے۔ صاف صاف قرآن کا پیغام ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ۔ بہرحال یہ تبلیغ کی بات تو بیچ میں آ گئی تھی، بات یہ بتلا رہا تھا کہ عورت میک اپ بھی کر سکتی ہے، بناؤ سنگار بھی کر سکتی ہے، لیکن اس کے لیے کچھ شرطیں ہیں۔ پہلی شرط تو یہ تھی وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، کہ میک اپ گھر میں رہ کر کرے، میک اپ کر کے باہر نہ نکلے۔ دوسری شرط ہے
अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लअन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल मुतशब्बिहाति बिर्रिजाल मिनन निसा वल मुतशब्बिहीन बिन निसाइ मिनर रिजाल। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि औरत मेकअप तो करे, लेकिन जो औरतों के लिए मेकअप है वो करे, मर्दों जैसा ना बने। मर्दों के लिबास अलग है, औरतों का लिबास अलग है। मर्दों का मेकअप, हालांकि उनका कोई मेकअप नहीं है लेकिन फिर भी खुशबू तो लगा सकता है। मर्दों का मेकअप अलग है, जूते अलग है, कपड़े अलग है। औरतों का जो लिबास है, उनके जो जूते हैं वो अलग होते हैं। तो हुजूर ने क्या फरमाया कि औरतें अपने लिए जो कपड़े बनाए गए हैं, औरतों के जो कपड़े हैं वो पहने, मर्दों वाले कपड़े ना पहने, मर्दों जैसे ना बने। औरत वही जूते पहनेगी जो औरतों के लिए बनाई गए हैं, मर्दों वाले जूते ना पहने। हुजूर ने क्या फरमाया, लअन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल मुतशब्बिहाति बिर्रिजाल मिनन निसा वल मुतशब्बिहीन बिन निसाइ मिनर रिजाल। जो औरतें मर्दों जैसा लिबास और उनके जैसा बनने की कोशिश करती है, अल्लाह की उस पर लानत हो, और उन मर्दों पर भी अल्लाह की लानत है जो औरतों जैसा बनने की कोशिश करते हैं। तो दूसरी शर्त मेकअप की क्या है औरतों के लिए, कि वो मर्दों जैसा लिबास और कपड़े ना पहने। ये इस्लाम की खूबसूरती है, इस्लाम का हुस्न है। इतनी अच्छी तालीम दी है, इतनी खूबसूरत तालीम दी है कि औरत को घर में रखा और उसके लिए एक मेकअप मुकर्रर कर दिया, कपड़े मुकर्रर कर दिए। और इसका बड़ा फायदा भी है। भला औरतें मर्दों जैसा बनने की कोशिश क्यों करेंगी? उनको अल्लाह ने अपना एक कॉन्फिडेंस दिया है, उनकी अपनी एक पहचान दी है। लेकिन आज का जो यूरोप है, आज का जो मगरिबी ममालिक है, वो औरतों को क्या कहते हैं कि तुम्हारी तरक्की जब होगी जब तुम मर्दों जैसा कपड़ा पहनोगी। औरतें भी तो यही समझती है ना। औरत को अपना लिबास पहनते हुए इतना कॉन्फिडेंस नहीं आता, इतना उसके अंदर हौसला नहीं आता जितना मर्दों जैसा कपड़े पहनकर आता है। उसको शर्म आनी चाहिए। अल्लाह ने तुझे अपनी एक पहचान दी थी, तूने अपनी पहचान खोकर मर्दों की पहचान को अपनाकर समझती है कि अब मैं तरक्की कर रही हूं। मर्दों को तो बल्कि औरतों जैसा बनते हुए शर्म आती है, लेकिन औरतों को शर्म नहीं आती मर्दों जैसा बनते हुए। अल्लाह ने उसको एक पहचान दी है, अलग शनाख्त दी है। अभी वो कतर में फीफा वर्ल्ड कप हो रहा है, या हो गया होगा शायद, मुझे तो इस फुटबॉल से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन खबरों में जो बातें आई थी, कतर की हुकूमत ने, चूंकि वो एक मुस्लिम हुकूमत है, इस्लामी मुल्क है, तो वहाँ कुछ अलग कानून बनाए थे। कतर ने कहा था कि यहाँ जो फुटबॉल मैच देखने के लिए आएगा वो शराब नहीं पिएगा और जो लिबास है वो पूरा पहनकर आए, पूरा पहनकर आए। अब मगरिबी ममालिक की जो मीडिया है उन्होंने हा हुल्ला मचाना शुरू कर दिया कि ये तो इंसानियत की हुकूक की पामाली है, इंसानियत की आज़ादी को छीनना है। इंसान को शराब पीने की आज़ादी होनी चाहिए। कतर में स्टेडियम में बैठकर उनको जैसा चाहे लिबास पहनने की आज़ादी होनी चाहिए। कतर ने साफ साफ कर दिया, ये साफ वजाहत कर दी कि हमारा मुल्क है, हमारे मुल्क के कुछ कानून हैं, हमारा मुल्क इस्लामी मुल्क है। जिस तरह हर कंट्री के कुछ ना कुछ कानून होते हैं, हमारे मुल्क के भी अपने कुछ कानून हैं। तो यहाँ जो फुटबॉल मैच देखने के लिए आएगा तो वह हमारे मुल्क के कानून को और लॉ को फॉलो करेगा। तो इस पर मीडिया को हा हुल्ला मचाने की क्या जरूरत थी? और दूसरी मीडिया को तो देखो, छोड़ दो, जो यूके की दुनिया की इंटरनेशनल न्यूज चैनल है बीबीसी, उसने भी कहा, उसने भी इस पर एतराज जताया। बल्कि बीबीसी ने तो फुटबॉल मैच दिखाने से भी इनकार कर दिया कि मैं कतर का फीफा वर्ल्ड कप नहीं दिखाऊंगा। क्यों? क्योंकि वहां इंसान की आजादी को छीना जा रहा है, वहां इंसान की हुकूक को, इंसानी हुकूक को पामाल किया जा रहा है।
सबसे पहले तो ये समझना चाहिए कि हर मुल्क के अलग कानून होते हैं। आप यूएसए में चला जाए, वहां शराब पीने की एक एज है। आप यूके में और इंग्लैंड में चले जाएं, वहां शराब पीने की एक एज है। एक नहीं है, अलग अलग उम्र है, मेरे जहन में नहीं रही। गालिबन यूएसए में तो 18 साल की एज है और यूके में 19 साल की एज है, 19 की या 20 की जो भी होगी, लेकिन दोनों में अलग अलग है। अब अमेरिका का, यूएसए का रहने वाला अगर इंग्लैंड में जाए, जो 18 साल का है, वो ड्रिंक करे, शराब मांगे, तो उसको यूके वाले शराब नहीं देते, शराब खाने में घुसने ही नहीं देते कि भाई तुम्हारी एज कम है, तुम्हें शराब नहीं दी जाएगी। तो क्या कभी वो एतराज करते हैं कि आप इंसानी हुकूक की आज़ादी को और इंसानी आज़ादी को ख़त्म कर रहे हैं? हमारे यहाँ तो अमेरिका में 18 साल की जो एज होती है, 18 साल का जो होता है, उसको शराब दे दी जाती है। तो आप तो इंसानियत के खिलाफ कर रहे हैं। कभी एतराज जताया? नहीं। लेकिन क्यों नहीं एतराज जताते, क्यों नहीं हा हुल्ला करते मीडिया वाले? वो कहते हैं कि भाई ठीक है, यूएसए में और अमेरिका में 18 साल की एज मुकर्रर है और यूके में 19 साल की एज है, तो ये वहां का कानून है, वहां को फॉलो किया जाएगा। कभी एतराज नहीं किया जाता। ये तो मैंने कानून बताया है, वरना बहुत सारे कानून हैं, बहुत सारे कानून हैं जो एक मुल्क का कानून अलग होता है, दूसरे मुल्क में नहीं होता। अब ये विक्स है, विक्स जो सर्दी के लिए नाक पर लगाते हैं नज़ला ख़त्म करने के लिए, बहुत सारे ममालिक में ये बैन है। विक्स को बेच ही नहीं सकते, ना खरीद सकते, ना कंपनी बनाती है। अब कोई कहने लगे कि हमारे यहाँ इंडिया में तो विक्स चलती है, आपने बैन क्यों कर रखा है? लेकिन एतराज क्यों नहीं करते? समझते हैं भाई हर मुल्क का कोई ना कोई कानून है, लॉ है। तो भाई इसी तरह दोहा का और कतर का भी एक कानून है, अगर वो फॉलो करने के लिए कहे तो उस पर एतराज वाली कोई बात नहीं है, शोर शराबा करने वाली कोई बात नहीं है। दूसरी बात यह है कि बीबीसी ने खास तौर से, जो न्यूज़ चैनल है, उसने इसलिए नहीं दिखाया कि इसने इंसानी आज़ादी को ख़त्म किया, इंसानी हुकूक को पामाल किया। तो क्या कभी बीबीसी ने अमेरिका से और इंग्लैंड से ये सवाल किया है? अमेरिका ने और यूके ने, इंग्लैंड ने दुनिया में लाखों लोगों का कत्ल किया, बेगुनाह लोगों का कत्ल किया, लेकिन कभी बीबीसी ने ये कहकर उनके प्रोग्राम को दिखाने से मना नहीं किया कि भाई तुमने इराकियों का कत्ल क्यों किया, तुमने अफगानियों का कत्ल क्यों किया, तुमने दुनिया के दूसरे ममालिक में कत्ल आम क्यों किया? कभी सवाल किया बीबीसी ने अमेरिका से, अमेरिकी हुकूमत से? कभी ये सवाल उठाकर अमेरिका का कोई प्रोग्राम दिखाना बंद किया बीबीसी ने, या इंग्लैंड का, या किसी भी यूरोपीय मुल्क का? नहीं, कभी नहीं किया। लेकिन यहां कतर का जब मामला आता है तो एतराज जताता है बीबीसी और प्रोग्राम दिखाने से मना करता है। दरअसल बात यह है कि जो यूरोपीय मुल्क है, जो अंग्रेजी ममालिक है, इनको दूसरे पर एतराज करने की लत पड़ी हुई है कि भी वो इंडिया को कहेंगे कि आप ये क्यों कर रहे हैं, दूसरे से कहते हैं कि ये ना करो, वो ना करो। हर जगह इनको उंगली करने की आदत पड़ी हुई है, लेकिन खुद नहीं देखते कि दुनिया में वो कौन से जराइम को पैदा कर रहे हैं। लाखों लोगों का कत्ल किया, उसको नहीं देखते, लेकिन कभी इंडिया को टोकते हैं, कभी इंडिया की हुकूमत को टोकते हैं कि आप ये करें, ये ना करें, दूसरे ममालिक को टोकते रहते हैं। मगरिबी ममालिक की मीडिया को ये तो कतर का साथ देना चाहिए, उससे इत्तिफाक करना चाहिए कि भाई आपने इतना खूबसूरत कानून बनाया, शराब पर पाबंदी लगाई और छोटे कपड़े पहनने पर पाबंदी लगाई, ये तो बड़ी खूबसूरत बात है। शराब पीना सेहत के लिए हानिकारक है, डॉक्टर्स भी कहते हैं, साइंसदान भी कहते हैं। आपने शराब पर पाबंदी लगाई, बहुत अच्छा कानून बनाया। उसकी हौसला अफजाई करने के बजाय उसकी मुखालफत करते हैं। बहरहाल कहने की बात यह थी कि औरत अपनी हद में रहकर मेकअप कर सकती है, लेकिन उसके लिए कुछ शर्तें हैं
پہلی شرط تو بتائی تھی کہ وہ گھر سے بناؤ سنگار کر کے نہ نکلے، گھر میں رہ کر کرے، گھر سے باہر نہ کرے۔ دوسری شرط یہ تھی کہ وہ مردوں جیسا میک اپ نہ کرے، مردوں جیسے کپڑے نہ پہنے۔ اور اسی طرح ایک شرط یہ بھی ہے کہ وہ کفار اور کافروں جیسا میک اپ نہ کرے، بلکہ یہ والی شرط تو عورتوں کے لیے کیا، مردوں کے لیے بھی ہے۔ قرآن کریم میں ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ، اور ایک جگہ فرمایا لا تکونوا کالذین کفروا، کہ کافروں جیسے نہ بنو، کافروں جیسا لباس نہ پہنو، اپنا معاشرہ، اپنا ماحول، اپنا میک اپ، اپنا بناؤ سنگار، اپنا لباس یہ کافروں جیسا نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طرح ایک شرط یہ ہے بناؤ سنگار کی، لباس کی، میک اپ کی، کہ اس میں بہت زیادہ فضول خرچی نہ ہو، ضرورت سے زیادہ فضول خرچی نہ ہو۔ تو بات یہ چل رہی تھی کہ اسلام نے باطنی صفائی کا بھی حکم دیا کہ اپنے باطن کو، اپنے دل کو حسد سے، تکبر سے، غیبت سے، چغل خوری سے پاک صاف کرے، اور ظاہری طور پر بھی صاف ستھرا رہنے کی کوشش کرے۔ اپنا لباس صاف ستھرا ہونا چاہیے، اپنا بناؤ سنگار بھی صاف ستھرا ہونا چاہیے۔ اور عورتوں کے لیے کچھ شرطیں رکھی ہے بناؤ سنگار کی جو میں نے ابھی ذکر کی ہے۔ تو صفائی ستھرائی کا اہتمام کرے، گھروں کو بھی صاف ستھرا رکھے، یہ صحت کے لیے بھی اچھا ہے۔ اور اسی طرح اللہ کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی صفائی ستھرائی بہت زیادہ پسند